وقار سامعین حاضرین تمام کو بندہ نچی سلام محبت پیش کرتا ہے، اللہ مالک کے حضور التجا کرتا ہے رب لم یزل جمعہ المبارک کی بابرکت نشست کے اندر مجھے حق بیانی کی توفیق نصیب فرمائے، سن سنا کر رب لم یزل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ المبارک کی اس نشست کے اندر میں نے آپ کے سامنے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے اسلام کے اندر یہ شہادت گواہی دینا، حلف نیا اٹھانا، اس کے متعلق اس کی اہمیت کیا ہے، اگر بندہ ناجائز گواہی دے تو اس کا عذاب کیا ہے۔ آقا پاک کے غلاموں، خالق کائنات نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا اقیم شہادت للہ، گواہی کو اللہ کی رضا کے لیے قائم کرو۔ گواہی کو کس لیے قائم کرو؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ گواہی یہ اللہ کی عبادت ہے اگر اسے حق کے حق میں دیا جائے۔ حق کے حق میں اگر آل حق کے حق میں گواہی دی جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی عبادت بھی ہے، اور دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھا جائے جب معاملہ مختلف بندوں کے بیٹھنے کے ساتھ طے نہ ہو تو اس وقت بات نیا پہ آتی ہے، قسم پہ آتی ہے، گواہی پہ آتی ہے۔ تو جب گواہی دی جاتی ہے تو دو بڑے خاندان بڑی لڑائی سے بچ جاتے ہیں۔ جب کوئی سچی گواہی دیتا ہے تو جس کا مال ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ جب سچی گواہی دی جاتی ہے تو اس صورت میں قتل و غارت سے بچا جا سکتا ہے، اور یہ معاشرہ اس کی ترقی کا معیار اسی پہ ہے کہ انصاف قائم کیا جائے، اور انصاف کی ایک شرط سچی گواہی ہے۔ کیا ہے ایک شرط؟ سچی گواہی شرط ہے ایک۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، یہ جو زمانہ چل رہا ہے اس زمانے کے اندر جھوٹ، دھوکہ، فریب یہ عام ہو چکا ہے۔ جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم اٹھانا، جھوٹا نیا دینا، جھوٹی گواہی دینا، اس چیز کو لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں، کوئی بڑا اسے گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن آؤ سنو، گناہ کبیرہ میں سے، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ بندہ جھوٹی گواہی دے یا جھوٹا نیا بار دے۔ ایک بڑا گناہ کبیرہ میں سے یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی جماعت میں تشریف فرما ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کیا، فرمایا صحابہ بتاؤ، صحابہ میں تمہیں بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے ہاتھ جوڑ لیے، یا رسول اللہ ہمیں ضرور ارشاد فرمائیے تاکہ ہم بڑے گناہوں سے بچ سکیں، بڑے گناہوں سے بچ سکیں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا خالق سمجھے، اپنا مالک سمجھے، اپنا معبود سمجھے۔ اب بعد جو جاہل قسم کے ممبر و محراب پہ وارث بنے بیٹھے ہیں، وہ یہاں پہ یہ بات کہہ کر اولیاء کی، انبیاء کی توہین سمجھتے ہیں، کرتے ہیں، اور کہتے ہیں دیکھو جی یہ جو اہل سنت و جماعت ہے یہ یا علی سرکار کا نعرہ لگاتے ہیں، اور یہ اولیاء کو پکارتے ہیں، یہ غوث پاک کو پکارتے ہیں، لہذا یہ شرک ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، شرک کی یہ تعریف نہیں ہے۔ کسی اللہ کے نبی کو پکارنا، اللہ کے ولی کو پکارنا،
مدد کے لیے اس سے شرک نہیں ہوتا. شرک یہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی کو رب سمجھ کر، الہ سمجھ کر، حقیقی مددگار سمجھ کر پکارے تو پھر شرک ہوتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے حقیقی مالک، حقیقی بیٹے دینے والا، حقیقی شفا دینے والا، حقیقی مدد فرمانے والا وہ اللہ کی ذات ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے. نبی ولی یہ وسیلہ ہے، ان کی نگاہ ہوتی ہے، رب راضی ہوتا ہے، حالی جولیے بھر دیتا ہے. ان کی نگاہ ہوتی ہے. ان کو جب ہم پکارتے ہیں تو ہم اس کی بارگاہ میں انہیں وسیلہ بناتے ہیں. اللہ نے بھی فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے محبوب جب یہ تیرے امتی اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، گناہوں کے انبار اپنے اوپر یہ لاد لیں، اب ان کا دل چاہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، جاؤگا یہ تیرے دربار پہ آ جائیں. کیا ہو؟ یہ تیرے دربار پہ آ جائیں. ربا گناہ تو معاف فرمانے والا ہے، بلا اپنے محبوب کے دربار پہ رہا ہے. رب فرماتا ہے معاف میں ہی کرتا ہوں، لیکن اسے ہی کرتا ہوں جو محمد کی غلامی میں آ جاتا ہے، جو میرے مصطفیٰ کے در پہ مانگت بن کے آ جاتا ہے، سوالی بن کے آ جاتا ہے. جولیاں اسی کی بھری جاتی ہیں، معافیاں اسے ہی دی جاتی ہیں. تو میرے نبی کے غلاموں، پہلا بڑا گناہ کبیرہ میں سے وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا. اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا. سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ چاہے تو اپنے فضل سے سارے گناہ معاف فرما دے، لیکن یہ جو شرک ہے یہ ایسا گناہ ہے یہ اللہ معاف نہیں فرمائے گا، یہ گناہ معاف نہیں کیا جائے گا. اسی گناہ کی پداش پر جو مکے کے کافر ہیں انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھا جائے گا، کیونکہ انہوں نے بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا. بتوں کو کیا کیا تھا؟ اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا. یا رسول اللہ اور کون سے گناہ کبیرہ ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسرا بڑا گناہ یہ ہے بندہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے، والدین کو اذیت دے، والدین کو تکلیف دے، والدین اس کے اوپر ناراض ہو جائیں، اس کی نافرمانی کی وجہ سے ناراض ہو جائیں. تو میرے نبی کے غلام حضور فرما رہے ہیں بڑے گناہوں میں سے دوسرے نمبر پر یہ بڑا گناہ ہے بندہ والدین کا نافرمان بن جائے. اس میں میں ایک واقعہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں. آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، موت کا وقت قریب آ گیا، آخری سانسیں چل رہی ہیں لیکن سانس نکل نہیں رہی. صحابہ کرام میرے حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کیا آقا جی، آقا جو فلانا صحابی غلام ہے نا اس کا آخری سانس چل رہا ہے لیکن سانس ختم نہیں ہو رہا، جان قبض نہیں ہو رہی. آقا جی اس کی جان تکلیف کے اندر ہے. میرے نبی نے فرمایا اس کی ماں کو بلا لاؤ. جب ماں کو بلایا گیا آقا نے فرمایا اے صحابی کی ماں بتا تیرا ساتھ تیرے بیٹے کا رویہ کیسا تھا، تیرا اپنے بیٹے کے ساتھ خیال کیسا ہے؟ ماں نے کہا یا رسول اللہ یہ اپنی بیوی کی باتوں کو میری باتوں پہ فوقیت دے دیا کرتا تھا، اس وجہ سے میں اس کے اوپر ناراض ہوں. آقا پاک نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ اس کی جان نہیں نکل رہی ہے. حضور نے فرمایا تو اسے معاف کر دے. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں معاف نہیں کروں گی، ساری زندگی اس نے اپنی بیوی کی بات کو میری بات پہ فوقیت دی ہے. آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ لکڑیاں لائی جائیں، لکڑیاں لائی جائیں اور اس کو آگ لگائی جائے. جب آگ خوب جل جائے تو اس کو اٹھا کر اس آگ میں پھینک دیا جائے. جب
इतनी बात सुनी ना, माँ थी दिल नरम हो गया, हाथ जोड़े आका जी माफ फरमा दे, मैंने अपने बेटे को माफ फरमा दिया। आका जी मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने इस तरह आग में ना जलाना। मेरे हुजूर ने फरमाया क्या तू ये चाहती है कि दुनिया से 70 गुना ज्यादा जहन्नम की जो आग है उसके अंदर इसे जलाया जाए? या रसूल अल्लाह मैं तो इस आग में जलता देखना नहीं चाहती। हुजूर ने फरमाया फिर माफ कर दे, अगर तू माफ नहीं करेगी इधर भी जलाया जाएगा आगे भी जलाया जाएगा। उसने कहा या रसूल अल्लाह मैंने आपकी खातिर रब रसूल की खातिर अपने बेटे को माफ कर दिया है। माँ के माफ करने की देर है, बेटे का आखिरी सांस निकला है और जुबान पे जारी हो गया है ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद सल्ले अला या मोहम्मद सरवर अल्लाहु अकबर। तो ये दूसरा बड़ा गुनाह क्या है? माँ बाप की नाफरमानी करना। ये शबे कदर, ये शबे बारात, ये वो रातें हैं जिन रातों के अंदर बड़े बड़े गुनाहगार मुआफ कर दिए जाते हैं, लेकिन शराब का आदी, जानी और जो अपनी माँ और बाप को तकलीफ देने वाला हो, अपनी माँ बाप से माफी ना मांगने वाला हो, ये 3 किस्म के बंदे मुआफ नहीं किए जाते हैं। मेरे नबी के गुलामों, अब नबी पाक सलाम ने तीसरी चीज बयान फरमाई। सहाबा किराम को हुजूर ने तवज्जो फरमा कर फरमाया ऐ मेरे सहाबा, तीसरी चीज जो अल्लाह की बारगाह में सबसे बड़ा गुनाह है, अशहादतु ज़ूरी, अशहादतु ज़ूरी, अशहादतु ज़ूरी, झूठी गवाही देना, झूठी गवाही देना, झूठी गवाही देना। सहाबा कहते हैं नबी पाक पहले तकिए के साथ टेक लगा के बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी जब ये बयान करने लगे हुजूर सीधा होकर बैठ गए और हुजूर ये फरमाते जा रहे थे झूठी गवाही देना बड़ा गुनाह है, झूठी गवाही देना बड़ा गुनाह है, झूठा नियाह बनना ये बहुत बड़ा गुनाह है, झूठा नियाह बनना ये बहुत बड़ा गुनाह है। सहाबा कहते हैं हम नबी करीम सलाम के ये अल्फाज सुनते जा रहे थे और हमारे दिल कह रहे थे अब काश नबी पाक खामोश हो जाएं, अल्लाह के नबी खामोश हो जाएं। और नबी पाक ने ये बार बार क्यों ये फरमाया? ताकि उम्मत को पता चल जाए कि ये झूठी गवाही देना इसे मामूली गुनाह ना समझना, ये बल्कि अल्लाह की बारगाह में बड़े गुनाहों में से तीसरा बड़ा गुनाह है। अल्लाह अकबर, ये बड़े गुनाहों में से तीसरा बड़ा गुनाह है झूठी गवाही देना। अल्लाह अकबर। देखो हम बात बात पे कसम उठाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है, झूठे बंदे की निशानी यही काफ़ी है कि वो हर बात पे कसम उठाता है, हर बात पे। वैसे भी कसम उठाने की हर बात पे इजाज़त नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ है तो वहाँ देनी चाहिए कसम, उठानी चाहिए कसम। हाँ अगर आप हक पे हैं, सच्ची गवाही देना चाहते हैं तो नबी पाक ने क्या फरमाया? आका पाक ने फरमाया बेहतरीन गवाहों में से वो गवाह है जो हक की गवाही में देर नहीं करता बल्कि जल्दी करता है। हक की गवाही में देर नहीं करता बल्कि क्या करता है? जल्दी करता है। बेहतरीन गवाहों में से वो गवाह है जो हक की गवाही में देर नहीं लगाता बल्कि जल्दी करता है गवाही देने में। मेरे नबी पाक के गुलामों, आज जमाना ऐसा आ गया है झूठ को इबादत समझा जाता है, झूठी कसम को मामूली समझा जाता है, इसे गुनाह नहीं समझा जाता है। और अगर हम जनाबे वाला कचहरियों में चले जाए तो वहाँ पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पैसे लेकर गवाहियाँ देते हैं, आज गवाहियाँ बेची जाती हैं। मेरे नबी पाक ने ज़माने की खबर दी है, आका पाक ने फरमाया सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है।
उच्चीवाना को सुभान अल्लाह। सब से बेहतरीन ज़माना वो मेरा ज़माना है, इसके बाद मेरे सहाबा का ज़माना है, इसके बाद ताबीन तबा ताबीन का ज़माना है। क्या मतलब है? नबी का ज़माना इसलिए बेहतर है कि इस ज़माने में जो कलमा पढ़ने वाले हैं वो ईमान के पक्के हैं, वो किरदार के अच्छे हैं, वो अमल के सच्चे हैं, वो निगाह के पाक हैं, वो ज़ुबान के सच्चे हैं, वो ख्याल के अच्छे हैं। अल्लाह अकबर। ये सहाबा का ज़माना है और ताबईन का ज़माना है। ताबी वो है जिसने ईमान की आँख से सहाबी को देखा, और इसके बाद तबा ताबईन का ज़माना है जिसने ईमान की आँख से ताबी की ज़ियारत की हो। और ये कितना बड़ा अजर है। हज़ूर ने फरमाया जिसने मुझे देखा या मेरे सहाबी को देखा या ताबी को देखा, ईमान की आँख के साथ देखा, अल्लाह उससे जहन्नम की आग को दूर फरमा देगा, जहन्नम की आग को दूर फरमा देगा। तो हुजूर ने क्या फरमाया? ये तीन ज़माने बेहतर हैं। क्यों? इस ज़माने के लोग सच्चे हैं, इस ज़माने के लोग अच्छे हैं, ईमान के पक्के हैं, कुरान पे अमल करने वाले हैं। ये दीन के, अल्लाह के रसूल के बागी नहीं है। ये सहाबा का ज़माना, ये ताबईन का ज़माना, तबा ताबईन का ज़माना। आका जी बाद में क्या होगा? फरमाया बुराइयां आम हो जाएंगी। उन बुराइयों में से एक बुराई ये आम हो जाएगी, किसी को कहा भी नहीं जाएगा, खुद ही झूठा गवाह उठ के झूठी गवाही देने आ जाएगा। कही अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। झूठा गवाह उठेगा, झूठी गवाही देने आ जाएगा, खुद ही देने आ जाएगा, ना कोई मांगेगा। और उसे पता भी होगा कि जिसके हक में मैं गवाही दे रहा हूँ ये खुद भी मुजरम है, ये खुद भी झूठा है। मेरे नबी पाक के गुलामों, तो इस ज़माने की बुराइयों में से बड़ी बुराई, बड़ा गुनाह, गुनाह कबीरा में से एक गुनाह ये है कि झूठी गवाही देना, झूठा निया भरना, झूठी कसम उठाना। और ये हुजूर ने फरमाया है, और आका पाक की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह क़यामत की निशानी क्या है? हुजूर ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि जब झूठे गवाह आम हो जाएंगे, जब झूठी गवाही आम हो जाएगी, जब गवाही देने में कोई भी बंदा झिझक महसूस नहीं करेगा। हाँ, हुजूर की हदीस ये ठीक है। हुजूर ने फरमाया अगर तू हक की गवाही देना चाहता है इसे छुपा नहीं, अगर तू छुपाएगा तो कल्बू आसिमुन, अल्लाह कुरान में कहता है तेरा दिल गुनाहगार है, तेरा दिल गुनाहगार है, सियाहकार है, तेरे दिल के अंदर कुफर की, मुनाफिकत की कालक अभी भी बाकी है। तो अल्लाह अकबर, हक में सच्ची गवाही देना ये अच्छा काम है, और मुजरम के हक में झूठी गवाही देना क़यामत की निशानी है। क्या है? क़यामत की निशानी है। आज हम मामूली समझते हैं। सुनो, हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? हजूर ने फरमाया जो बंदा झूठी गवाही देने जाता है, जब वो झूठी गवाही देता है, झूठा निया भरता है, झूठी कसम उठाता है और मुजरम को सच्चा साबित करने के लिए वो झूठी कसम और कुरान पे हाथ रख देता है, मेरे हुजूर फरमाते हैं उसका कदम उस जमीन से हिलता नहीं है, अल्लाह उसे जहन्नमी लिख देता है। अस्तगफिरुल्लाह कहें, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह उसे क्या लिख देता है? जहन्नमी लिख देता है। जो झूठी गवाही देने जाता है उसका कदम उसकी ज़मीन से नहीं हिलता, तो अल्लाह उसे जहन्नमी लिख देता है। हजूर ने फरमाया कता रहमी करना, रिश्तेदारों से नाता तोड़ना और झूठी गवाही देना, झूठा न्याय भरना, हुजूर ने फरमाया ये रब से लड़ाई है। ये क्या है? रब से लड़ाई है।
आका फरमाते हैं जो बंदा कत्ता रहमी करता है और जो बंदा झूठा न्या बरता है, झूठी गवाही देता है, झूठी कसम उठाता है, वो बंदे से लड़ाई नहीं कर रहा है, वो रब से लड़ाई कर रहा है और रब को लड़ाई की दावत दे रहा है। हजरात, बंदा तो अपने से ताकतवर का मुकाबला बंदे का नहीं कर सकता, वो तो मालिकुल मुल्क है और जिसके हुक्म का इशारा ही हो जाए सारी जमीन पलट दी जाए। अल्लाह अकबर, जमीन पे ज़ल्ज़ले आ जाए। जो अहकामुल हाकिमीन है, जो सत्तार भी है और साथ कखार भी है, जब उसका जलाल अरूज पे आएगा तो उस दिन आदम जैसे नबी, ईसा अलैहिस्सलाम तक सब नबी नफ्सी नफ्सी की पुकार पुकारेंगे। आज रब का जलाल उरूज पर है, कौन है जो हमारी सिफारिश अल्लाह की बारगाह में करे? फिर मेरे नबी फरमाएंगे आना लकुम, मैं हूं ना जो तुम्हारे लिए, आज मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। हजूर सर सजदे में रखेंगे, रब फरमाएगा इरफा रासा का सल तोता इशफा तुशफा, महबूबा सर उठाइए मांगिए अता किया जाएगा। शफात करिए, जिस पे नजर करेंगे हम उसे जन्नती बना देंगे, हम उसे। लेकिन उसका जलाल ये आलम है कि कुल पैगंबर भी नफ्सी नफ्सी पुकारेंगे, कुल पैगंबर भी नफ्सी नफ्सी पुकारेंगे, तो उसे झूठी गवाही देकर अपने साथ लड़ाई की दावत देना है, अपने साथ लड़ाई की दावत देना है। तो आज के ज़माने में क्या है, झूठी गवाही को मामूली समझा जाता है, झूठे न्याय को मामूली समझा जाता है। और इसके नुकसानात क्या हैं? इसके नुकसानात ये हैं, फिर मुजरम सुधरते नहीं हैं, मुजरम बढ़ते हैं। इसके नुकसानात क्या हैं? फिर एक का नुकसान नहीं, फिर कईयों के नुकसान होते हैं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, ये इस्लाम ने जो मयार रखा है, इस्लाम ने जो मयार रखा है, उसमें किसी पे जुल्म करना नहीं, बल्कि बुराई को उसका सदेबाब करके ख़त्म करना है। उसका मकसद क्या है? ख़त्म करना है बुराई को सदेबाब उसका करके। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का ज़रा इरशाद सुने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु उम्मतिन मुआफ़ा इल्लल मुजाहरीन, मेरी सारी उम्मत माफ़ कर दी जाएगी सिवाय उन लोगों के जो अपने गुनाह सरेआम बयान करते हैं। एक है गवाही किसी के हक में देना, चाहे सच्ची दे रहा है चाहे झूठी दे रहा है, और एक है गवाही अपने हक में कायम करना। अपने हक में क्या करना? कायम करना। देखे बंदा है, गुनाह होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा हम सरेआम गुनाह भी करते हैं और ऊपर से हम अपना बड़ापन समझते हैं कि भाई हम गुनाह कर रहे हैं तो ये हमारा बड़ापन है, या हम गुनाह करके उस गुनाह को चौराहों में दोस्तों में बैठकर बयान करते हैं, मैंने ऐसे किया, मैंने फलां किया, मैंने इतना बड़ा काम कर दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, इंसान गुनाहगार ज़रूर है। अगर आप अपने मुतल्लक गवाही अच्छी कायम करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सरेआम गुनाह से बचें। वैसे गुनाह से बचना चाहिए, लेकिन सरेआम गुनाहों से बचें। और जो बंदे सरेआम गुनाहों से बचते हैं, अगर तन्हाई से उनसे गुनाह हो भी जाता है, नबी पाक फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, दिन माशर के अल्लाह करीम की बारगाह में ऐसे बंदों को लाया जाएगा जो तन्हाई में जिनसे छोटे छोटे गुनाह हो गए होंगे। अल्लाह करीम एक बंदे को अपने हरीमे कुरम में बुलाएगा, फरमाएगा ए बंदे अपने गुनाह तो ज़रा सुनाना। वो नामा अमाल से अपने छोटे छोटे गुनाह बयान करेगा। रब्बे करीम उसके कान में फरमाएगा ए मेरे बंदे, मैंने तेरे ये गुनाह मुआफ़ फरमा दिए हैं, तेरे मैंने गुनाह ये क्या कर दिए हैं,
मुआफ फरमा दिए हैं। अब बंदा जब जनाबे वाला पहले बड़े गुनाह बयान नहीं करेगा, क्योंकि आज तो मैं पकड़ा जाऊंगा, आज मुझे जरूर अजाब दिया जाएगा, आज मेरे जहन्नम जाने का हुक्म सादर किया जाएगा। लेकिन जब रब की रहमत वाली जुबान अक़दस से ये बात जो अल्लाह की जुबान शान कुदरत के मुताबिक है, ये बात सुनेगा तो अब ये अर्ज करेगा, रब्बे करीम मैंने ये छोटे छोटे बयान किए हैं, इससे आगे मेरे बड़े बड़े गुनाह भी हैं। हाल के कायनात फरमाएगा, तू दुनिया में चुप चुप के तुझसे गुनाह जो हुए हैं, मैंने दुनिया में तेरे गुनाहों पे पर्दा डाला है। मोहम्मद की गुलामी का सदका अब तेरे बड़ों पे भी पर्दा डाल दिया है। जे कर मेरे बाकारन फजल तेरा ना होंदा, दफ्तर काले बदियां वाले कौन मेरे सिर तोंदा। तो एक है अपने मतलब गवाही कायम करना, बंदा अपना काम अज काम जाहिर ऐसा बनाए और अपने ज़ाहिरी अमाल को ऐसा रखे कि जब मरे तो लोग इसके मतलब गवाही दे, यार ये तो मस्जिद आता था, यार इसने तो रोज़े रखे हैं, यार ये दीनी मामलात में अपना तावन पेश किया करता था, यार उसका लिबादा हजूर की सुन्नत के मुताबिक था। तू जाहिर भी अपने नबी जैसा बना ले, जेड़ा सोने दिया डोरा टुरे ओ कदे भी जलीलो ख्वार नहीं हुंदा। रब सोने दी नकल लाण वालियां नूं भी माफ फरमा दिंदा है। ऊंची दब के आखो सुभान अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना है, आप बैठे हुए हैं, पास दीगर सहाबा भी बैठे हुए हैं। एक जनाजा गुजरा, सहाबा ने अर्ज किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन ये फलां बंदे का जनाजा है और ये बहुत अच्छा बंदा था, ये मस्जिद में आने वाला था, दीन के मामलात में अपना हिस्सा डालने वाला था। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर पाक ने फरमाया, वाजिबात इस पे वाजिब हो गई। कहिए सुभान अल्लाह, इस पे वाजिब हो गई। अब इत्तफाकन एक और जनाजा गुजरा, कहने वालों ने कहा ये फलां बंदा है, कलमा तो इसने पढ़ रखा था लेकिन इसका किरदार कोई भी मुसलमानों वाला नहीं था, शरीयत के मुताबिक इसकी जिंदगी नहीं थी, ये अल्लाह नबी की नाफरमानी में जिंदगी गुजारने वाला इंसान था। हज़रत उमर ने सुना, फरमाया वाजिबात। पास बैठे असहाब ने पूछा, ऐ उमर अच्छे की अच्छाई सुनकर भी आपने कहा वाजिबात वाजिब हो गई, और बुरे की बुराई सुनकर भी आपने फरमाया वाजिबात वाजिब हो गई। उमर कहने लगे, जब तुमने ये मंजर मेरे आके बयान किया तो मुझे अपने नबी की जिंदगी वाला वाक़या याद आ गया। हम नबी पाक के दरबार में बैठे हुए थे, इत्तफाकन एक जनाजा गुजरा, नबी पाक ने फरमाया इसका किरदार कैसा था, इसका मामला कैसा था। हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये जो जनाजा उठा के लाया जा रहा है, या रसूल अल्लाह ये जो मैयत है ये बंदा बहुत अच्छा था, ये बंदा कुरान पढ़ने वाला था, दीन से मोहब्बत करने वाला था। आका ने भी फरमाया था वाजिबात, मैंने भी कह दिया वाजिबात। आका भी फरमाया वाजिबात, मैंने भी कह दिया वाजिबात। और जब इत्तफाकन दूसरा जनाजा गुजरा था तो सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह ये बंदा बड़ा बुरे अखलाक का मालिक था, ये बंदा बड़ा बुरे अखलाक का मालिक था। हजूर ने भी फरमाया वाजिबात। मुझे भी वो याद आई बात, मैंने भी कहा वाजिबात। अल्लाह अकबर। हमने भी हुजूर की बारगाह में इसी तरह पूछा था जैसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। हमने जब अर्ज किया था, नबी पाक ने फरमाया था, मेरे सहाबा बादुकुम अला बादिन शहीद, अल्लाह ने तुमको एक दूसरे पे गवाह बनाया है, एक दूसरे पे गवाह बनाया है। और जिसके जनाजे पे 4 बंदे उसकी नेकी की गवाही दे दें, मैं कमली वाला
फरमाया ये सनद देता हूँ, अल्लाह उसे जन्नती लिख देता है। खट ले बंदिया ओ जो तू खटना, ये सौदा इस बाजारों हशर दियाड़े ओ जन्नत लबसी ते शर्म रसी दरबारों। नबी पाक के गुलामों तो गवाही कायम करनी। सहाबा ने अर्ज किया आका जी जिसके 4 गवाह ना हो, फरमाया जिसके 3 ही मोमिन गवाही दे दे वो भी जन्नती है। आका जी जिसके 3 भी जनाजे में गवाह ना हो, फरमाया जिसके 2 मोमिन मुसलमान भाई उसके जनाजे में उसकी नेक नामी की गवाही दे दे, अल्लाह गवाही के सदके इस मरने वाले को जन्नती लिख देता है, जन्नती लिख देता है। भाई तो कम अज कम अपना ज़ाहिर ऐसा होना चाहिए, तो अपने मतलब भी गवाही कायम करनी चाहिए। हमारा ज़ाहिर कम अज कम इतना अच्छा हो जाए कि जाने वाले जब हम जाएं तो कोई ये ना कहे कि ये बुरा इंसान गया है, कम अज कम इतना कह दे ये ऐसा था, मस्जिद में आता था और इसका ज़ाहिर हुजूर जैसा था। भाई ये दुनिया फ़ानी है, जिस दुनिया के हुस्न के पीछे हम मर रहे हैं ना, ये दुनिया फ़ानी है। एक ना एक दिन हमारे बूढ़े भी चले गए, बड़े भी चले गए, कितने छोटे हैं जो माँ के पेट से मौत लेकर पैदा होते हैं। तो ये अल्लाह का फ़ैसला है, जब हो जाना है तो उस वक़्त ना 1 मिनट आगे होना है ज़िंदगी का, ना पीछे होना है। तो हम अपनी मौत को भूले बैठे हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। कभी हम तन्हाई में बैठकर इतना सोच लेना एक दिन ये सांस की जो लड़ी है ये टूट जाएगी और हमारे बहन भाई हमारे बच्चे हमें कांधों पे उठाकर कब्र में तन्हा छोड़ के वापस आ जाएंगे। खुदा की कसम समझ आ जाएगी अंधेरी कोठरी में क्या बनेगा। हाँ अगर अल्लाह रसूल को राजी किया होगा तो फिर कोई आशिक तुझे ये दिलासा देगा उठे कमली वाला आवेगा, बयान कमली एठ छुपावेगा, दुख दर्द सारे मुकावेगा, पड़ोला इल्लल्लाह या मोहम्मद। अब देखें, अब एक बंदा है 5 वक़्त का नमाजी है और उसका ज़ाहिर भी हुजूर की सुन्नत के मुताबिक है, कुरान भी पढ़ता है, दीनी मामलात में अच्छे वो हिस्सा भी लेता है, लेकिन हम फिर भी उसका अंदर क्या करने की कोशिश करते हैं। वो यार इसके अंदर ये भी बीमारी है, यार इसके अंदर ये भी बीमारी है। लेकिन रब की रहमत देखो और रब का कानून देखो कि तुम में से कोई गुनाहगार मोमिन भी उठकर, मुझ में से कोई मेरे जैसा गुनाहगार ही उठकर जनाजे पे 2 बंदे भी गवाही दे दें, रब इसका बातिन नहीं देखता। रब कहता है मेरे बंदू ने इसके ज़ाहिर की गवाही दे दी है, ये जन्नती हो गया है। ये क्या हो गया है? जन्नती हो गया है। लेकिन हम चंगे से चंगा बंदा, अच्छे से अच्छा बंदा, जिसका ज़ाहिर काम अज़ कम दीन के मुताबिक है, शरीयत के मुताबिक है, हम उसमें से भी ऐब निकालने की कोशिश करते हैं। मियाँ साहब फरमाते हैं इन्हां गल्लां विच ओए की लभदा ओ ऐब किसे ते तरना, अपना आप संभाल मोहम्मद, और जो करना सो परना। तो जाहिर अगर किसी का अच्छा है, हुजूर का इतना फरमाया, सरकार ने फरमाया जिसे 5 वक़्त मस्जिद में आते जाते देखो ना, 5 नमाजों टाइम मस्जिद में आते जाते देखो, हुजूर फरमाते हैं तुम ही उसकी जन्नती होने की गवाही दे दिया। आका फरमाते हैं, हुजूर क्या फरमाते हैं, तुम ही उसके जन्नती होने की गवाही दे दिया करो। अब है गवाही और नया बनना, एक है बंदे का रब के साथ ताल्लुक। अब इसमें 2 चीज़ें हैं,
کہ بندے نے رب کی نافرمانی کی ہے، یہاں پہ اس کی نافرمانی کے متعلق گواہی بھی ہے، اور نمبر 2 اس کے عیب پہ بھی پردہ ڈالنا ہے، نمبر 2 اس کے عیب پہ بھی پردہ ڈالنا ہے۔ جو بندے کی رب کی بارگاہ میں نافرمانی ہے، اس میں افضل یہ ہے کہ اس کے عیب پہ پردہ ڈالا جائے۔ کیا کیا جائے اس کے عیب پہ؟ کیوں؟ یہ بندے اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ یہ کس کا معاملہ ہے؟ بندے اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ اس کے عیب پہ کیا کیا جائے؟ پردہ ڈالا جائے، اور اسے تنہائی میں جہاں پہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اسے نیکی کی دعوت بھی دی جائے، برائی سے بچنے کا اسے کہا بھی جائے۔ اس کے عیب پہ پردہ ڈالنا یہ افضل کام ہے۔ اب ایک ہے بندے کا بندے کے ساتھ جرم کرنا، بندے کا بندے کے ساتھ جرم کرنا۔ اب تیسرا بندہ گواہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اسے معاملے کا پتہ ہے، اور اسے پتہ ہے کہ اگر میں گواہی نہیں دوں گا تو جس سے جرم ہوا ہے اس کا نقصان ہوگا، اس کا جانی نقصان ہوگا، اس کا مالی نقصان ہوگا، تو اس وقت گواہی دینا افضل ہے، گواہی دینا افضل ہے۔ اس وقت نیام بھرنا، گواہی دینا افضل ہے اس کے حق میں، تاکہ کسی کا کوئی بھی نقصان نہ ہو، کسی کا کوئی بھی نقصان نہ ہو۔ ہاں جو حقوق اللہ ہے اس میں بندے کا اور رب کا معاملہ ہے۔ حضور کے صحابی ہے حضرت ماعز ان کا نام ہے، زناکاری ہو گئی، چل رہے ہیں، صحابہ نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں بڑا ہلاک ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے گناہ۔ صحابہ کرام نے کہا اور کیوں نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہے؟ جا کے تنہائی میں گناہ ہوا ہے، تنہائی میں بھی جا کر اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ لیکن خوف آخرت اتنا طاری تھا، وہ صحابی نبی کی بارگاہ میں چلے کہ یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، مجھ سے یہ کام ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا کیا تو نے شراب تو نہیں پی؟ یا رسول اللہ میں ہوش میں ہوں، میں عقل کے ساتھ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں اپنی عقل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ اس نے دوبارہ کہا، سرکار نے ادھر منہ فرما لیا، اس نے ادھر آ کے عرض کیا، سرکار نے ادھر منہ فرما لیا، اس نے سامنے آ کے عرض کیا، سرکار نے پیچھے منہ فرما لیا۔ جب 4 مرتبہ اس نے گواہی اپنی زبان سے دے دی، حضور نے فرمایا اب اسے رجم کر دیا جائے، پتھراؤ کر دیا جائے۔ رجم کیا، وہ شہید ہو گئے صحابی۔ جب شہید ہوئے تو کسی نے کہنے والے نے جنازہ اٹھایا جا رہا تھا تو صحابی کسی نے کہہ دیا، زبان سے نکل گیا کہ اس نے اپنے آپ کو بھی تکلیف میں ڈالا، نبی کریم کو بھی تکلیف میں ڈالا، کیا ضرورت تھی اپنا گناہ بیان کرنے کی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، لیکن اسے کوئی بھی تانا نہ دے، اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کی برکت پوری روئے زمین کے گناہگاروں کو دی جائے تو اللہ سب کو ہی معاف فرما دے۔ پوچھیا کو سبحان اللہ، اللہ صاحب کوئی۔ لیکن سرکار نے جو منہ پھیرے ہیں اس میں کیا ہے کہ اگر تجھے تنہائی میں تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے تو اسے لوگوں میں آ کر بیان نہ کر، اگر اسے بیان کر دیا جائے، گواہی قائم کر دی جائے، پھر اس کا دنیا میں بھی سزا ہے۔ اگر دنیا میں بھگت لی ہے تو آخرت میں بھی ہوگی، لیکن یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے تو اللہ معاف فرما دے، صدقہ میرے حضور کی غلامی کا، اللہ معاف فرما دے۔ وہ معاف فرمانے والا ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو وہ معاف فرمانے والا ہے۔ آخری گواہی جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، گواہی بھی اگر دینی ہو نا، ان ڈٹھی گواہی، تو کسی سچے کے حق میں دینی چاہیے۔ کس کے حق میں دینی چاہیے؟ تو ساری کائنات میں سب سے جو سچا ہے وہ ہے جس کے متعلق ابو جہل بھی بازو کھڑے کہہ کے کرتا تھا، کیا کرتا تھا؟ محمد صادق و امین، محمد امانت دار بھی ہے، محمد سچے بھی ہے، محمد سچے بھی ہیں۔ میرے آقا پاک نے ایک یہودی سے ایک گھوڑا خرید لیا، اب میرے آقا پاک وہ گھوڑا لے کر تشریف لے جا رہے ہیں گھر کی طرف، پیسے اس کے دینے ہیں، رستے میں سے پتا چلا یہ تو اور مہنگا بھی بک سکتا ہے۔ وہ واپس آیا، آ کے حضور سے گھوڑا طلب کرنے لگا۔ میرے آقا پاک نے فرمایا میرا تیرا سودا طے ہو چکا ہے۔ اس نے انکار کیا، کہنے لگا اے محمد بن عبداللہ، میرا اور آپ کا سودا
सौदा तय नहीं हुआ है। अल्लाह को सरकार ने फरमाया मेरा तेरा सौदा तय हो चुका है। इसने कहा कोई गवाह ले आओ। ज़ाहिरी बात है वहां पे कोई गवाह नहीं था जब मेरे आका पाक का इसके साथ सौदा तय हुआ था। लेकिन जब ये मामला चल रहा था, ये बहस मुबासा चल रहा था, पीछे हुजूर के सहाबी हजरत अबू हुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला ये खड़े हैं और मामला सुन रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब इसने गवाही मांगी ना, ये यहूदी के सामने आके खड़े हो गए और सीने पे हाथ रख के कहने लगे मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अरबी ने, मेरे आका ने तुझसे ये घोड़ा खरीदा है। फैसला मेरे हुजूर की बारगाह में हक में हो गया। शारहीन कहते हैं हुजूर ने ये घोड़ा हजरत बिलाल को पकड़ाया। बिलाल लेकर आगे आगे चल रहे हैं। हुजूर ने जैसे हम दोस्ताना अंदाज में अपने दोस्त के कंधे पे बाजू रखते हैं, उस सहाबी हजरत अबू हुज़ैमा के कंधे पे बाजू रखा है और सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया है अबू हुज़ैमा गवाही तो तब दी जाती है जब बंदा हाजिर हो। मामला देख रहा हो, तू तो यहाँ पे हाजिर नहीं था, तूने कैसे गवाही दी? अबू हुज़ैमा ने हाथ जोड़ लिए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह हमने रब देखा है। आका ने फरमाया नहीं देखा है। या रसूल अल्लाह हमने रब को एक माना है। फरमाया माना है। या रसूल अल्लाह किसके कहने पे माना है? फरमाया आपके कहने पे माना, मेरे कहने पे माना है। हुज़ैमा ने अर्ज किया आका जी जब हमने रब की तौहीद का इकरार बिन देखे आपके कहने पे किया है तो फिर हमें क्यों ना यकीन हो कि तेरे मुंह जेड़ी निकले ओ गलती रे करे तू इशारा जेड़ा ओ तकदीरे। आका जी जब हमने रब का एक होना मान लिया ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब मेरे आका ने सहाबी का ये कीदा देखा ना, ये मोहब्बत भरा अंदाज देखा ना, सहाबा के मजमे में मेरे नबी ने हजरत अबू हुज़ैमा के बाजू को बुलंद किया। फरमाया मेरी शरीयत में रूल ये है, कानून ये है, जब गवाही लेनी हो तो दो मर्दों की गवाही है या एक मर्द दो मर्दों की गवाही है। लेकिन जब मेरा अबू हुज़ैमा आ जाए ये केला भी गवाही दे, इसकी गवाही दो मर्दों के बराबर हो जाएगी। इसकी गवाही दो मर्दों के बराबर हो जाएगी। तो आखिर में बात यह है कि झूठी गवाही देना, झूठा न्याय भरना ये ऐसे ही है कि जैसे उसने अल्लाह की नाराज़गी मूल ली है। और ऐसे ही है कि हुज़ूर फरमाते हैं वो अपने कदम उसके हिलते नहीं हैं, जहन्नम उस पर वाजिब हो जाती है। हुज़ूर फरमाते हैं सबसे कबीरा गुनाह झूठी गवाही है, झूठी कसम है। दुआ करें अल्लाह सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे सब मोमिन मुसलमानों को अमल की तौफीक अता फरमाए। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।